Okay, now we had seen WT, that is tangential to float, and next we had already seen that is Lewis equation. And as we also know that the Lewis equation is only applicable to the beaker of the wheel, both the wheel, that is pinion and the gear. So next question is how you are going to find out which gear or the pinion is weaker, means among the two wheels. So condition are like this, that if pinion and gear have both have made of same material, so pinion is the weaker one. So we have to assume that pinion is the weak. Suppose a gear is made of gray cast iron and the pinion is also made of gray cast iron. So ultimately, it is to be assumed that the pinion is the weaker, and we have to apply the Lewis equation on the pinion. But what if both made up of different material? Suppose gear is made up of gray cast iron and pinion is made up of phosphor bronze. Phosphor bronze is a material. So what will be the condition now? Then you have to find out the strength factor for the both pinion and the gear. So you may see this equation, sigma naught, the sigma W into Y, and this sigma W Y is equal to sigma naught into CV. ठीक है, sigma naught into CV के बराबर होगा. So you have to find the sigma naught into CV or sigma naught into Y. Sigma naught into CV into Y, that is Lewis form factor. Y is the Lewis form factor, and we have to find out the value of the strength factor for the both, that is pinion and the gear also. Now among them, find out the values, and the minimum having, and the minimum value means the section is weaker. ठीक है, अगर वैल्यू मिनिमम है, इसका मतलब ये है कि वो गियर या वो पिनियन वीक है. ठीक है, जिसकी वैल्यू ये स्ट्रेंथ फैक्टर की वैल्यू कम आएगी वो वीक है. ठीक है, अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथफुल है. So as we know that the Lewis equation is only applied to the beaker of the wheel. So whichever have the lower value have must applied the Lewis equation. You know, देख it. Now if B is not given, B की वैल्यू given नहीं है, तो क्या करेंगे? Phase width. So 3pc to 4pc, that is circular pitch. PC means circular pitch, and PC is equal to pi d upon t. ठीक है, और 9.5 m to 12.5 m. M is here the module. For the cut teeth means if the here teeth is made up of milling or the whatever you say hobbing process, okay, and if it is made up of casting process, that is making a mold, and then you are going to pour the molten metal on the mold, and then mold is baked, and you have to make the gear. Okay, so उसके लिए क्या होगा? 2pc to 3pc और 6.5 m to 9.5 m. यहाँ तक हम देख चुके थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में. Now next step is to calculate the dynamic loading, and as we know that the dynamic loading is equal to Wt plus Wi. Wt is again the tangential tooth load. Okay, but please keep in mind that here the tangential tooth load is getting by neglecting the service factor CS. यहाँ पे जो टेंजेंशियल टूथ लोड हम लोग पता करेंगे उसमें सर्विस फैक्टर CS को नेग्लेक्ट करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? Wt is equal to P upon V
मल्टीप्लाई बाई सी एस। ठीक है, सो द tooth factor used in this formula, that is dynamic loading, we have to neglect this CS, that is surface factor. Then after you have to apply P upon V, और यहाँ पे सर्विस फैक्टर को 1 भी मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ incremental dynamic load is equal to 21V into V multiplied by C plus WT upon 21V plus under V multiplied by C plus WT. And we had seen that from where you are going to find out C value. C की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, WT हम निकाल चुके हैं अभी, B की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन होगी तो हमारे पास कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, एंड C की वैल्यू हम लोग डाटा से निकालेंगे। ठीक है, next step is to find out the static tooth load, that is beam strength. Next step is to find out the beam strength, and the formula is like sigma A into B into pi, sorry, PC into Y, or sigma A into B into pi into M into Y. ये फॉर्मूला थोड़ा गौर करेंगे दोनों फॉर्मूले पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है। ठीक है, कभी कभी ये हो सकता है सर्कुलर पिच किसके बराबर होता है, तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला यहाँ पे पाई इंटू एम भी होता है, बट एक सर्कुलर पिच का फॉर्मूला यहाँ पे पाई इंटू एम भी होता है, यहाँ तो सिग्मा ई इंटू बी इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई। यहाँ पे फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट ब्रेकेज, ब्रेकेज या टूटने जो है उसके सेफ्टी के लिए WS शुड बी ग्रेटर देन WD। WS की वैल्यू हमेशा WD से ज्यादा होनी चाहिए, WS should be greater than WD, and we had already seen that WS and WD relation. Okay, now last step is the find the wear to load by using the relation W is equal to dP into B into Q into K. ये भी हम देखे थे अभी in the last video, that is dP into B into Q to the ratio factor, and this value is 2 VR upon VR plus 1 for the external bearing and 2 VR upon VR minus 1 for the internal bearing. ठीक है, TG internal bearing 2 TG upon TG plus TP, and for the external bearing and 2 TG upon TG minus TP for the internal bearing. ये हम देख चुके हैं। So now we have finally completed the design procedure. If we are facing the subjective question or subjective question paper, this design procedure is very important. ये design procedure बहुत important होता है अगर हम लोग subjective paper solve कर रहे होते हैं। Why? Because sometime examiner ask the design procedure itself. ठीक है, एग्जामिनर हम लोग से डिजाइन प्रोसीजर ही पूछ लेता है कि डिजाइन प्रोसीजर बताइए। ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है, डाटा बुक खोलो, अच्छा अपने साथ स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो वो हमारे पास वो अब छीन चुका है। इसमें क्या पूछ सकता है, ये जो इक्वेशन से ढेर सारे रिलेशन है ये पूछे जा सकते हैं डिजाइन प्रोसीजर में, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नाउ अभी वी आर गोइंग टू सी अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहला क्वेश्चन नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको पढ़िए। आई एम गिविंग यू टाइम, इट इज 11:17 and at 11:19 I'm giving you 2 minute time for only reading it. Read it and write given in your copy. Read it and write given in your copy. That's all. कुछ नहीं, बस पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना। दिमाग अगर आप लोग अपना फ्रिज में रख के आए हैं कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बस पढ़ेंगे और गिवन लिख देंगे, इतने में हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और गिवन लिखिए, इतना हम बस आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं। इतना तो कर लेंगे आप लोग, मुझ पे एक एहसान करना कि क्वेश्चन पढ़ के बस गिवन लिख देना। टुडे इज योगा डे, घर में आप लोग योगा किए होंगे, करना भी चाहिए क्योंकि योगा इज नॉट एक्सरसाइज,
इट इज वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका है योगा। एज वी नो दैट कोरोना अफेक्ट अस वेरी मच, बहुत ज्यादा कोरोना मुझे इफेक्ट किया है। एंड कोरोना लीड अस टू, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एंड कोरोना लीड अस टू द natural thing, means we have to conserve nature, take something from the nature, that is your herbs that is going to be used for the medicine, that is giloy. You may see giloy plant everywhere, or tulsi, or the patharchur. You may know patharchur, ब्रायोफिलम, जिसको हम लोग अजूबा का पत्ता बोलते हैं गांव में। उसमें क्या होता है, वो पत्ता पथरी, पथरी जो होता है, पथरी में बहुत बड़ा काम करता है। इसको पत्थर चूर हम लोग अपने घर में लगाए हुए हैं, तो वैसे लगाए हैं, ठीक है। तो पत्थर चूर का भी काम कर सकते हैं आप लोग। उससे अजूबा का जो पत्ता है, उसके पत्ते से पौधा निकल जाता है। तो आपके आसपास कहीं होगा, देखेंगे पत्ते से पौधा निकल रहा है, उसको अजूबा, इसको ब्रायोफिलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोना हम लोग को नेचुरल चीज की तरफ बड़ा इफेक्ट किया है, आयुर्वेद की तरफ जाने के लिए। और आयुर्वेद अकेले नहीं, साथ में योगा भी। तो योगा भी घर में खुद करिए, और हम तो रोज करते हैं 15 मिनट, योगा डे की वजह से नहीं, पिछले कई सालों से करते हैं। कभी कभी छूट जाता है 1-2 दिन के लिए, वो अलग बात है, लेकिन हम मेरे दिनचर्या में 15 से 20 मिनट हमको योगा करना है। 15 से 20 मिनट आप लोग योगा करिए, और घर वालों को भी करवाइए योगा डे पे, ठीक है। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन भी करिए। चलिए अब इसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे, योगा और योगा डे के बारे में। नाउ क्वेश्चन आप लोग सामने है, एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। आई थिंक आप लोग गिवन लिखे होंगे, कुछ लोग गिवन नहीं लिखे होंगे, तो एटलीस्ट पढ़े जरूर होंगे। तो जो पढ़ा होगा वही इतना आपको एहसान कर लिया होगा मेरे ऊपर कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो लोग गिवन नहीं लिखे हैं, प्लीज गिवन लिखने की प्रैक्टिस डालिए। भले हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है सब्जेक्टिव में, लेकिन हम लोग को अभी कंप्रेशन और गेट भी निकालना है, अगर आप लोग का मन किया तो, ठीक है ना। अब ब्रॉन्ज स्पर, ब्रॉन्ज स्पर मीन्स स्पर गियर, स्पर गियर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ओके। A bronze spur pinion rotating at 600 rpm, that is NP is the rotation for the pinion, drives a cast iron spur gear at transmission ratio of 4:1. Now you may see the spur gear is made up of cast iron and the spur pinion is made up of bronze. तो हमारे दिमाग में यही आ गया कि लेविस इक्वेशन इस पे अप्लाई करने के लिए सिग्मा नॉट इनटू वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम मेटल का नहीं बना हुआ है। नाउ द ट्रांसमिशन रेशियो, दिस इज आल्सो नोन एज गियर रेशियो, इज इक्वल टू 4:1, मींस Tg upon Tp is equal to 4:1, is equal to Dg upon Dp is equal to again vice versa, Np upon Ng is also 4:1, Np into Ng, ठीक है। पिनियन इज स्मॉल, सो बड़ा वैल्यू कहाँ रहेगा, जो ज्यादा रोटेशन देगा, ठीक है। तो वो 4 है, ठीक है। सिग्मा ओपी इज इक्वल टू फॉर द पिनियन इज 84 MPa एंड 105 MPa फॉर द गियर। नाउ अब लेविस इक्वेशन के लिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। लेविस इक्वेशन के लिए द पिनियन है 16 स्टैंडर्ड। नाउ 16 स्टैंडर्ड मींस the number of teeth on the pinion. The 16 standard means number of teeth on the pinion is given, that is TP 16 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्व टीथ। अब ये इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग, जब लेविस फॉर्म फैक्टर बनाएंगे लिखेंगे तब। तो 20 डिग्री फुल डेप्थ यहाँ याद रखेंगे इनवॉल्व टीथ है, एंड ऑफ मॉड्यूल 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर का मॉड्यूल है, ठीक है। द फेस विड्थ ऑफ द गियर इज 90 मिलीमीटर। फाइंड द पावर, पावर निकालना हम लोग को
that can be transmitted from the standpoint of strength, and Wt is equal to P upon V। यहां से पावर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, और क्वेश्चन निकालना चाहिए वो भी समझ में आ गया हम लोग को, समझ में आ गया। चलिए गिवन देखते हैं, आइए गिवन देखते हैं। नाउ गिवन में क्या क्या है, NP that is rotation of the pinion 600 rpm, velocity ratio Tg upon Tp is equal to 4 sigma OP, that is sigma naught, OP means sigma naught, static stress for the pinion is equal to 24 MPa, and static stress for the gear is 105 MPa. Tp that is number of teeth on the pinion is 16, and mod is equal to 8 millimeter, and B is equal to 90 millimeter। अब देखिए यहाँ पे फेस विड्थ की वैल्यू दे चुकी है, तो हम लोग को वो कंडीशन नहीं लगाना जो हम ऊपर डिस्कस किए थे, अगर नहीं देता तो कंडीशन लगाते हैं। नाउ वी हैव मॉड्यूल एंड वी नो दैट m is equal to d upon t, तो क्या यहाँ से हम लोग डायमीटर ऑफ द पिनियन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं नहीं, मन में बोलेंगे तब भी आवाज आ जाएगी, निकाल सकते हैं। क्यों? we have m, we have t, and d is unknown, so one unknown and two known lead to the finding out the diameter of the pinion. So dp is equal to m into tp, and it's equal to 128 millimeter and or 0.128 meter. Next step is to find out pitch line velocity. V is equal to pi dp and p upon 60. Okay, why we are going to use for the pinion? Because we are assuming here that the pinion is the driver. Okay, so pi into 0.128 into 600 upon 60, that is 4.02 meter per second, 4.02 meter per second। अब ये 4.02 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम लोग को CV की वैल्यू चाहिए, CV की वैल्यू that is velocity factor, and velocity factor against 4.02 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? CV is equal to 3 upon 3 plus V। प्लीज रिमाइंड लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी फैक्टर देखे थे। अगर 12 मीटर पर सेकंड से कम होगा तो CV की वैल्यू कौन सा लगाएंगे? तो 3 upon 3 plus V लगा रहे हैं। 3 upon 3 plus 4.02, that is 0.427 is the CV value। प्लीज यहाँ पे फोकस करेंगे स्टेप, बार बार दिमाग में बोल रहे हैं, आप लोग से बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे है स्टेप को फोकस करिए। इसके बाद क्या निकालना है? एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मशीन डिजाइन इज वेरी मच रिलेटेड टू द डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन प्रोसीजर जो है उसको जरूर देखेंगे, किसके बाद क्या निकालना स्टेप, ठीक है। तो V निकाले, CV निकाले। मान लीजिए पहले CV निकाल लिया आप, तो मतलब फॉर्मूला लिख दिए, तो कैसे निकालेंगे? पहले विदाउट नोइंग V हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट CV, कोई रिलेवेंट नहीं है CV निकालने का। अब अगला हमारा है लेविस फॉर्म फैक्टर निकालना है। तो लेविस फॉर्म फैक्टर के लिए हम जो मार्क किए थे कंडीशन, 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्व टिप, 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्व टिप के लिए कंडीशन क्या होगा? तो फिर रिमाइंड लास्ट टू लास्ट लेक्चर उसमें हम देखे थे टूथ फॉर्म फैक्टर, दैट इज आल्सो नोन एज लेविस फॉर्म फैक्टर। तो yp इज इक्वल टू 0.154 माइनस 0.912 अपॉन टीपी, और यहाँ से आ गया वैल्यू 0.097। ये देखो कहाँ से निकाले हम लोग, ये इसके लिए 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कंडीशन देना चाहिए, और यहाँ दिया हुआ है 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्व के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। एंड yp is equal to 0.154 minus 0.912 upon tp for the pinion, and yg is equal to 0.154 minus 0.912 upon tg for the gear, and we have 0.14 for the gear and 0.097 for the pinion, ठीक है। Now
Next step is to find out the strength factor, that is strength. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या देंगे थे, सिग्मा नॉट इंटू वाई निकालना होगा, सिग्मा डब्ल्यू इंटू वाई। सिग्मा डब्ल्यू कुछ गिवन नहीं है तो क्या लगाएंगे, सिग्मा नॉट इंटू वाई पता करेंगे फॉर द पिनियन एंड सिग्मा नॉट इंटू वाई फॉर द गियर। प्लीज कीप इन माइंड दैट डिजाइन प्रोसीजर किसके बाद क्या निकालना है, किसके बाद क्या निकालना है, ये डिजाइन प्रोसीजर अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लिए हैं स्ट्रेंथ, दैट इज कौन सा वीकर है, पिनियन इज द वीकर वन। पिनियन यहाँ पे वीकर है, क्यों, देखिए वैल्यू देखो 8.148, ये आ गया स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर द पिनियन एंड 14.7 स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर द गियर। ठीक है, स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर द गियर यहाँ पे आ गया। ओके, सिग्मा नॉट इंटू पी और सिग्मा नॉट इंटू जी वाई जी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं ना। अब यहाँ पे लेवी से किस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, बीकर वाले पे। बीकर कौन सा पिनियन है, अब यहाँ पे पिनियन वीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पिनियन हमेशा वीक होगा, दिमाग में रखेंगे। पिनियन वीक हो गया, इट डज नॉट मीन द पिनियन विल ऑलवेज बी वीकर वन। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द condition, depending upon the condition, gear may also be weak, gear भी weak हो सकता है। So WT का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें, WT is equal to sigma W for the pinion, sigma W for the pinion, and we don't have sigma W for the pinion, so we have condition sigma W is equal to sigma naught into CV। देखे थे ऊपर, sigma W is equal to sigma naught into CV and we have sigma naught and we have CV value। CV यहाँ पे सबके लिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पिच लाइन वेलोसिटी निकाले फॉर द बाय यूजिंग पिनियन एंड वी हैव assumed that the pinion is the driver one, that's why we are going to find out the velocity factor, sorry velocity for the pinion and velocity factor for the pinion। it does not mean कि यहाँ पे गियर का भी निकालना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पिनियन का ही निकालेंगे। तो CV यहाँ पे हमारे पास है 0.427, 84 गिवन है, 0.427 यहाँ हम निकाले हैं अभी। 90 is the face width, 90 is the face width given, pi then 8 is the module भी given है यहाँ पे, then 0.97 is the tooth form factor and which is also known as Lewis form factor। कहाँ गया 0.097 this value। ठीक है, so now we have the tangential load is equal to 7870 न्यूटन। WT की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, WT की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एंड वी नो दैट WT is equal to P upon V, P upon V। P ही तो निकालना है हम लोग को अल्टीमेटली, P निकालने के लिए WT हम निकाले हैं अभी, जस्ट V हमारे पास हम लोग यहाँ पे है, यहाँ से P निकल जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है, यहाँ पे सर्विस फैक्टर CS को नेगलेक्ट करेंगे, प्लीज नेगलेक्ट CS हियर। क्यों, कोई कंडीशन नहीं दिया है CS के लिए, क्या कोई कंडीशन दिया है, नहीं दिया है, तो एज्यूम कर लीजिए कि ये स्टडी लोडिंग है और 8 से 10 घंटे ये मशीन वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, तो 8 से 10 घंटे अगर ये वर्किंग कंडीशन में है तो हम लोग CS को 1 एज्यूम करेंगे। नाउ power that can be transmitted, that is WT into V is equal to 7870 into 4.02, that is 31640 watt और 31.64 किलोवाट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब दिस इज ओनली फॉर फाइंडिंग आउट द पावर। ठीक है, जब लोग डिजाइन प्रोसीजर पूछेगा, इफ एग्जामिनर आस्क अस टू प्लीज डिजाइन फॉर ऑल कंडीशन, सो वी हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो करना पड़ेगा, हम लोग उसको भी क्वेश्चन करेंगे। दिस इज अ सिंपल वन, ये सिंपल क्वेश्चन था फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बड़ा इजी क्वेश्चन था। ओके,